Welcome to Chemistry Zone Digital. This is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, this is lecture number 7 from Atomic Structure, and in today's video session we are going to discuss the postulates along with the success of the Bohr's atomic model. But before I actually start discussing the postulates of the Bohr's theory, let me remind you once again that this is the third atomic model that we are going to discuss in this chapter. In my previous video sessions, I have already told you about the Thomson's model of an atom and the Rutherford's model, which was based upon the alpha ray scattering over the gold foil. Students, जो हम लोगों ने last model पढ़ा था, Rutherford's model, that stood in contradiction with the Maxwell's electromagnetic theory, which believed in the continuous radiation of energy. Rutherford ने जब हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, Rutherford ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूक्लियस के अराउंड वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है. तो इस बात को मैक्सवेल ने ये कह के कॉन्ट्रोडिक्ट करा कि अगर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल, तो फिर ऐसे में इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ने कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करी तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन विल लैंड ओवर द न्यूक्लियस एंड दैट विल रिजल्ट इन द कोलैप्सिंग ऑफ एटम. But we all know that atom is a stable entity which does not collapse by itself. So the main drawback of Rutherford was that he was unable to justify the stability of his atom. Thus, in order to improve the drawbacks of Rutherford's model, Niels Bohr presented another atomic model in 1913. 1913 में नील बोर ने अपना नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करा which was based upon the Planck's quantum theory. देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सवेल्स की थ्योरी कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन ऑफ एनर्जी में बिलीव करती थी, लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के एक पोस्टुलेट में हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी इज नेवर रिलीज्ड कॉन्टिन्यूअसली, इनफैक्ट इट इज रिलीज्ड discontinuously in the form of small packets of energy which are known as quanta, and in case of light these quantum of radiations were also called photons. तो इसी discontinuous radiation of energy पे बेस्ड यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट पे बेस्ड नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट करा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल. स्टूडेंट्स, वैसे तो बोर्स थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, but the main idea of the Bohr's theory can be summarized in 5 postulates. Bohr's theory का जो main content है, the main theme and the main summarization of the Bohr's theory, that can be explained just in terms of 5 postulates. उन्हीं 5 postulates को discuss करते हैं. The very first postulate of the Bohr's theory states that the electron always revolve around the nucleus in fixed circular path, and these fixed circular path are called orbits or shells, and these orbits are either represented by the numeric digits 1 2 3 4, or they can be represented alphabetically using K L M N and so on. तो बोर्स थ्योरी के पहले पोस्टुलेट में बोर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है, एंड दीज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. So if this is the nucleus, तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ हैं. इन सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इन पाथ्स को ऑर्बिट्स या शेल्स भी कहा जाता है. इन शेल्स को आप अल्फाबेट K L M N and so on represent कर सकते हैं. So this was the first postulate of the Bohr's theory, and this is quite a simple postulate. Rutherford की तरह बोर ने भी ये कंसिडर करा कि एटम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है और एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट कि बोर ने हमें बताया कि ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझिएगा. देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट में बोर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स. बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि न्यूक्लियस के अराउंड हम कितनी सर्कुलर ऑर्बिट्स बना सकते हैं. We can actually draw the infinite circular orbits of different radius.
हम न्यूक्लियस कह रहा हूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स बना सकते हैं अलग अलग रेडियस की। तो फिर हाउ कैन वी डिसाइड कि किस सर्कुलर ऑर्बिट में, किस रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल है और रैंडमली इलेक्ट्रॉन किसी में भी हो सकता है। सो कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स ही अलाउड होंगी, कुछ सर्टेन रेडियस अलाउड होंगे, जिन रेडियस के पाथ्स में, जिन रेडियस की शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा। सो इसी से रिलेटेड सेकंड पोस्टुलेट हमें बोर्ड्स ने बताया कि ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर परमिटेड टू हैव इलेक्ट्रॉन in which the angular momentum of electron is some whole number multiple of h upon 2 pi। देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम, पहले मैं आपको बता दूं, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ में चलता है तो उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज द मोमेंटम। उसे हम स्पेसिफिकली लीनियर मोमेंटम बोलते हैं जब हम मास इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रेडियस, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो अगर हम मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को उस सर्कुलर पाथ के रेडियस से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने हमें बताया कि सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा जिन ऑर्बिट के रेडियस को अगर हम ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि m इंटू वी इंटू आर, जिनका h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल है, यानी कि m इंटू वी इंटू आर शुड बी n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, where this h is the Planck's constant and 2 and pi are constant। तो बेसिकली दिस होल साइड इज कांस्टेंट। तो सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ मिलेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम 1h अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई होगा, या 3h अपॉन 2 पाई होगा। तो कुछ स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम वाली ऑर्बिट्स ही अलाउड हैं। दे आर अलाउड टू कंटेन इलेक्ट्रॉन। रैंडमली इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता। तो सेकंड पोस्टुलेट स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें तो सेकंड पोस्टुलेट बेसिकली हमें बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशंस में ऑलरेडी आपको क्वांटाइजेशन का मतलब बता चुका हूं। क्वांटाइजेशन मतलब when something can just have fixed values। So angular momentum की या तो 1h upon 2 pi वैल्यू हो सकती है, या 1 के बाद सीधे अगली अलाउड वैल्यू 2h upon 2 pi होगी, या 2 के बाद अगली अलाउड वैल्यू 3h upon 2 pi होगी। एंगुलर मोमेंटम की 1 और 2h upon 2 pi के बीच की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है? या तो h upon 2 pi 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। सो एक बार सेकंड पोस्टुलेट पे फिर से ध्यान दीजिए। ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड टू हैव इलेक्ट्रॉन इन व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, मैंने आपको इसमें ऑलरेडी ये बता दिया, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एंड r इज द रेडियस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस थर्ड पोस्टुलेट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज एन इंप्रूवमेंट टू द रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में ये तीसरा पोस्टुलेट नहीं था, इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। लेकिन बोर्ड्स ने अपने तीसरे पोस्टुलेट में ये बताया कि टिल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इट विल नाइदर रिलीज नॉर एब्सॉर्ब एनी एनर्जी, and it will keep on revolving with a fixed energy. So till an electron is revolving in its own orbit, it will neither radiate nor absorb any energy. In fact, it will keep on revolving with a fixed amount of energy, and that's why these orbits are also called stationary orbits. Stationary orbit से मतलब है the orbits having a fixed, a constant value of energy associated with the electron. जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रहेगा और आप इसे बाहर से किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं देंगे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन ना अपने आप एनर्जी रिलीज करेगा, ना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। इनफैक्ट एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ अपने ही फिक्स्ड पाथ में घूमता रहेगा। सो क्योंकि अपनी ऑर्बिट में, अपने पाथ में इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता रहता है, एनर्जी कम या ज्यादा नहीं होती, फ्लक्चुएट नहीं होती। सो दैट्स व्हाई दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। Stationary means the orbits having a fixed value of energy, a stationary value of energy. Energy change नहीं होगी,
अनलाइक द रदरफोर्ड जिसको मैक्सवेल ने ये कहा था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, अब की बार ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। सो आई होप द थर्ड पोस्टुलेट इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू। एक बार फिर से सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट, as long as an electron keeps on revolving in its own orbit, its energy remains constant and it neither release or absorb any energy by itself. And that's why these orbits are also called the stationary orbits. Now let's move on to the fourth postulate. Even this fourth postulate is very important और यही fourth postulate later on आपको atomic spectra समझने में help करेगा। Fourth postulate में बोर ने हमें बताया कि if energy from some external source is provided to an electron, अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करें, then by absorbing energy that electron would be excited to certain higher energy level. अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और आप एक्सटर्नल सोर्स से इसे एनर्जी देते हैं, मान लीजिए हमने कोई रेडिएशन की फॉर्म इस पे इरेडिएट करी, तो अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल पे जंप कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट उस ओरिजिनल शेल को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन जब आपने बाहर से उसे एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, वो किसी हायर शेल पे चला गया, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। लेकिन बोर ने हमें यह भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल पे चला भी गया तो this excitation of electron would be a temporary process. Within a fraction of second, this electron will return back to its ground state, and while returning back, it will release the entire absorbed energy in the form of radiation. एक बार फिर से सुनिए पोस्टुलेट को, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाता हूं। If energy from some external source is provided to an electron, then electron would be excited to certain higher energy level. However, this excitation of electron is just a temporary process, and within a fraction of second, the electron will return back to its ground state, and during its returning back, it will release the entirely absorbed energy in the form of radiations. जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पे, तो जितनी भी एनर्जी उसने ऊपर जाते वक्त एब्जॉर्ब करी थी, वो सारी एनर्जी वापस रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब तक इलेक्ट्रॉन को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तब तक इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग विद इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। लेकिन हाँ, अगर आपने बाहर से उसे एनर्जी दी तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी एंड बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वो किसी हायर शेल पे एक्साइट हो जाएगा। और वो एक्साइटेशन एक टेम्परेरी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर आएगा तो ऊपर ही रिवॉल्व करने लग जाएगा, वो ऊपर आएगा और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वापस लौट के चला जाएगा, क्योंकि जब वो ऊपर आएगा तो वो हायर एनर्जी पे अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी पे कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं रहना चाहती, तो इन ऑर्डर टू रीअटेन इट्स स्टेबिलिटी वो हायर एनर्जी से वापस लोअर एनर्जी शेल पे जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे जाएगा और वापस जाते वक्त वो सारी एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज कर देगा। सो आई होप नाउ द फोर्थ पोस्टुलेट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पोस्टुलेट व्हिच इज द फाइनल एंड द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोर्ड थ्योरी। लास्ट पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिलीज और द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन रिलीज, देखिए कौन सी रेडिएशन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है तो मैंने आपको बताया कि वो सारी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज कर रहा है, जब वो ऊपर से नीचे जाएगा तो रेडिएशन से मिट आउट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जाता है तो वो जो रेडिएशन रिलीज करता है, उस रिलीज रेडिएशन के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा E is equal to E final minus E initial। एक बार पोस्टुलेट सुनिए फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी बताता हूं। When electron return back to its ground state, then the frequency of the radiation released by that electron can be calculated by using the relationship delta E is equal to E final minus E initial, and once we know delta E, so delta E can be equated to H nu। देखिए स्टूडेंट्स, E final means the energy of electron in the excited state and E initial is the energy of electron in its ground state। फाइनल स्टेट की एनर्जी में से अगर इनिशियल स्टेट की एनर्जी माइनस कर दें, यानी कि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में से अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस कर दें,
तो यहां से यहां तक जाते वक्त जो एनर्जी का डिफरेंस था वो एनर्जी का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। एंड वंस वी नो द एनर्जी डिफरेंस तो E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले के हिसाब से इस एनर्जी डिफरेंस को एच न्यू के बराबर इक्वेट करेंगे, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो न्यू निकाला जा सकता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डिमोट होगा, डिमोट इन द सेंस कि वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, तो वो जो रेडिएशन रिलीज करेगा उस रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है तो पहले हमें उस रिलीज रेडिएशन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस डिफरेंस डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। एंड वंस वी नोट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी तो हम इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को h न्यू के बराबर इक्वेट करके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो दीस वर द 5 postulates of the Bohr's theory. I hope the postulates are clear to you. Let us summarize these postulates once again. The very first postulate states that the electrons revolve around the nucleus in fixed circular orbits, and these orbits are also called shells, and they are represented by the alphabets K, L, M, N, and so on. The second postulate states that only those circular orbits around the nucleus are permitted to have electron in which the angular moment of an electron is some whole number multiple of h upon 2 pi. The third postulate states that as long as an electron keeps on revolving in its own orbit, it neither release nor absorb any energy. In fact, it keeps on revolving with a fixed amount of energy, and that's why these orbits are also called the stationary orbits. The fourth postulate states that when some energy from some external source is provided to an electron, then the electron is temporarily excited from its ground state to certain higher excited state, and this excitation is just a temporary process. This excited electron will ultimately return back to its ground state, and during its returning back, it will release the absorbed energy in the form of radiation. And the last postulate states that the frequency of radiation released when an electron jumps from excited state to ground state, then the frequency of the radiation released can be calculated by using the relationship delta E is equal to E final minus E initial, means E excited minus E ground state. And once we know the energy difference, then we can relate this energy difference to h nu to calculate the frequency of that radiation released. So ये थे 5 postulate. I hope आपको सभी postulate बहुत अच्छी तरह clear होंगे. And after we know the concept of these postulates, let us now move on to discuss the success of the Bohr's theory. Students, Bohr's theory के 4 important success हम classify कर सकते हैं. The very first success of the Bohr's theory was that कि unlike Rutherford, Bohr was able to justify the stability of atom. बोर ने हमें यह बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में घूम रहा है, it will neither release nor absorb any energy, and it will keep on revolving with a fixed amount of energy. And since the electron keeps on revolving with a fixed amount of energy, the energy of electron remains constant in its own orbit. Therefore, the possibility of shifting that electron towards the nucleus is ruled out. बोर ने मना कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कभी भी रिवॉल्व करता हुआ अपनी ऑर्बिट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और वो कभी भी न्यूक्लियस पे लैंड नहीं करेगा. Thus, Bohr was able to justify the stability of atom. The second postulate, the second success of Bohr's theory was that कि Bohr was successfully able to explain the atomic spectra. एटॉमिक स्पेक्ट्रा अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लाइंस पढ़ेंगे. तो उन स्पेक्ट्रम के कॉज को भी बोर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा. फॉर द टाइम बीइंग आप इस कॉज को बस याद रखिए, इस सक्सेस को याद रखिए कि बोर ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और वेरियस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करा. लेकिन कैसे एक्सप्लेन करा उसके लिए हम अभी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे. उस टॉपिक के अंदर आपको ये सेकंड सक्सेस अपने आप क्लियर हो जाएगा. द थर्ड पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अगले 2 पोस्टुलेट्स, अगले 2 सक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. द थर्ड सक्सेस ऑफ द बोर्स थ्योरी वाज दैट कि बोर प्रोवाइडेड अस अ फार्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम. बोर ने हमें यह भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो बोर प्रोवाइडेड अस अ फार्मूला दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट is minus
2 पाई स्क्वायर me4 upon n square h square, where m is the mass of electron, e is the charge over an electron. You know कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ऑलरेडी एनालाइज कर चुके थे. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. m is the mass of electron. मास भी हमें मालूम है, मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. h is Planck's constant, इसकी भी वैल्यू हमें मालूम है 6.626 into 10 to the power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जूल सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है. एंड n is the shell number, the orbit number in which the electron is revolving. So अगर हम इस फॉर्मूले में मास की, चार्ज की और h की वैल्यू रख के इसे सॉल्व करें, so we get the formula minus 2.18 into 10 to the power minus 18 upon n square into z square, where z is the atomic number. अगर आप हाइड्रोजन के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो हम n की जगह 1 रख देंगे. अगर आप हीलियम की सेकंड ऑर्बिट में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर रखेंगे 2, और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 2 रखा जाएगा और एनर्जी निकाली जाएगी. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की यूनिट है जूल पर एटम. सो दिस मच ऑफ एनर्जी जूल्स में होती है पर एटम, और अगर हम इसी एनर्जी को जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पर एटम को पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वंस वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद एवोगैड्रो नंबर तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा minus 1.312 into 10 to the power 6 upon n square into z square जूल पर मोल. सो दोनों यूनिट्स में आपको ये वैल्यूज याद रखनी है. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस ऑफ द बोर्स थ्योरी. बोर ने हमें ये बताया कि किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम किस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं. एंड द फाइनल सक्सेस ऑफ द बोर्स थ्योरी वाज दैट कि बोर आल्सो प्रोवाइडेड अस अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. अगर हमें हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट या हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट या किसी भी एलिमेंट की किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला हमें बोर ने दिया. द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.0529 into n square upon z nanometer. Nanometer is the unit. Nanometer is 10 to the power minus 9 meter. n is the orbit number, z is the atomic number. तो 0.0529 n square upon z को यूज करके हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं. So these were the 4 success of the Bohr's theory, and this was about today's session. आज के सेशन में मैंने आपको बोर्स थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स और 4 इंपॉर्टेंट सक्सेस बताए. बट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि बोर्स थ्योरी का जो सेकेंड सक्सेस मैंने आपको बताया कि बोर वाज एबल टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी लाइंस इन द लाइन स्पेक्ट्रम, वो पोस्टुलेट अभी एक्सप्लेन करना बाकी है. हम अपने नेक्स्ट सेशन में जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सेकेंड सक्सेस और एलैबोरेट करूंगा. स्टूडेंट्स, फाइनली बेस्ड अपॉन टुडेज सेशन अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका फाइनल आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. आपके सामने अब स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा. काइंडली नोट दैट क्वेश्चन. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth Bohr's orbit is given by E is equal to 21.76 into 10 to the power minus 19 z square upon n square joule per atom. Calculate the longest wavelength of light that will be needed to remove an electron from third orbit of helium positive ion. So students, this is a very important question. IIT में 1990s में ये क्वेश्चन पूछा गया था, and I hope you would be easily able to solve this question on the basis of today's video session. So students, that's it for today. आज के सेशन में हमें यही डिस्कस करना था. अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में we would be discussing the atomic spectra. Till then, have a great day. Thank you.